आपकी जॉब लगी थी 96 में 96 में आई जॉइन टाटा केमिकल्स। टाटा केमिकल्स क्या सैलरी में चालू किए थे सर? 3200। सर व्हेन डिड यू रीच योर फाइनेंशियल फ्रीडम? So maybe 5 years back I'll say that. कितने साल थे सर iFlex में? 14 years. 14 years. Yeah. तो क्या सर करियर जर्नी थी? काफ़ी लोगों को लगता है कि अरे थोड़ा सैलरी में इंक्रीमेंट मिल रहा है तो जंप कर लेते करके, बट आई डोंट बिलीव दैट। Are you seeing कि banks are spending time, effort, energy, money on improving the UI? Unless you don't have the pain, you don't gain. AI में सर कुछ यूज हो रहा है? I mean as an intern only for 70,000 rupees per month. सर आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी के बारे में बताइए। So obviously you will not make that much money if you invest into a FD or बिजनेस में पैसा ज्यादा बना कि जॉब में, लाइक क्या आपका व्यू है इसमें? सर वर्क लाइफ बैलेंस क्या ये मिथ है? क्या लोगों को चेस करना चाहिए? काफ़ी लोग स्मार्ट होते हैं, स्मार्ट इन द सेंस कि इंटेलिजेंट होते हैं, ओके, स्मार्ट इंटेलिजेंट। सो 8 घंटे में वो 10 घंटे का काम भी कर लेते हैं। क्या ओपिनियन है आपका ESOPs के बारे में? हाउ हैव यू बीन गेटिंग ESOPs एंड यू नो हाउ डज इट वर्क? Basically, see, again, you have to take a risk, okay? So most of people, when they are even getting a good salary, okay, they try to be conservative. क्या इम्पोर्टेंट है यू नो लिविंग विद इन योर मीन्स या सेविंग मनी? बिकॉज आजकल तो इंस्टेंट खुशी मिलती है, 2-2 मिनट में मिलती है। Then there are chances that now you can become a rich or maybe wealthy, because how you utilize that money, that is important. How you invest that money, that is important. Now there are so many jobs which are there, but only thing is that you have to learn something new, okay? And which people are scared of learning something new, okay? And that is where the people are getting laid off. Welcome to Mohit's Mantra, the podcast for people who want to thrive and not just survive. I am your host Mohit Beriwala, investor, entrepreneur, and lifelong learner who is constantly curious about one thing. क्या हमें जिंदगी में ग्रो कराता है? इन मनी, इन वर्क एंड इन लाइफ। इस पॉडकास्ट में मैं बैठता हूँ कुछ लोगों के संग जो कुछ इंस्पायर करते हैं मुझे कुछ सीखने को मिलेगा एंड होपफुली आपको भी। और क्या हम उनकी सोच को, उनके मेंटल मॉडल्स को, उनके डिसिप्लिन को हमारी ज़िंदगी में, हमारे काम में और हमारे पैसों में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। टुडे वी हैव विद अस बीरेन पारेख। बीरेन जी फाइनेंशियली फ्री है, बहुत बड़े कॉर्पोरेट करियर में है एंड ही इज़ फाइनेंशियली फ्री, और कई सारे मिथ हमें ब्रेक करेंगे। वेलकम बीरेन जी, थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो। Thank you, Mohit, for inviting me over here, and I really appreciate this. First of all, I'd just like to make a statement that whatever views I'm disclosing over here or sharing it over here, those are my personal views, and those does not reflect my employer's views. 100%। Yeah, thank you. 100%। Yeah. सो बीरेन जी प्लीज़ बताइए ना, आपकी कैसी रही जर्नी एंड क्वाइट एन इंस्पिरेशनल जर्नी है। Yeah, ऐसा लगता है मेरे को, but okay, so basically I started my career as a trainee programmer in 96 with the Tata Chemicals Limited. ट्रेनी प्रोग्रामर इन Tata Chemicals Limited, MIS department. अच्छा, टाटा केमिकल्स इज टेक्निकली नॉट एन IT कंपनी? No, it is not. It is not. Basically, I was studying at Ahmedabad, LD College of Engineering, and from there, from the campus, I got this opportunity, and which was again very close to my hometown. So I thought that it is better to take there. So I joined there as a trainee programmer for a 1 year. In the MIS department? In MIS department, yeah, and hardly there were 20 people were there in the MIS department. So it was a good learning opportunity. I was there for a year, and then I got an opportunity to move to iFlex. Okay, at that time it was called CITIL, CITIL, CITIL. So I moved to iFlex in 97 and moved to Mumbai. And सर आपकी जॉब लगी थी 96 में 96 में I joined Tata Chemicals. टाटा केमिकल्स क्या सैलरी में चालू किए थे सर? 3200. So 3200 3200 रुपए में हाँ स्टार्ट किया था, और उसमें से 200 रुपया कटता था, मतलब हॉस्टल का और खाना पीना कटता था। तो समवेयर अराउंड 2900 जैसा कुछ प्लस समथिंग हाथ में आता था। 2900 में आप घर भी चलाते थे और सब कुछ? Yeah. So it was in Mithapur basically. So there was not many avenues to spend money also. It was like there was one small theater which might be charging which was charging around 10 rupees kind of a thing for a show. 10 रुपए का मूवी होती थी। So 10 रुपए की मूवी टिकट, आज के दिन क्या मूवी के टिकट के दाम है? वही ना, 500 से लेके 1000 तक है। 500 से 1000। कलकत्ते में फिर भी 300 350 में मिल जाती है। Okay. Yeah, so that's how 96 में चालू किए 2900 रुपए में। हाँ। And sir, when did you reach your financial freedom? Oh. So maybe 5 years back I'll say that. 5 years back. So करीबन 2021 में, which is pretty fantastic. अगर आप देखेंगे तो करीबन 25 years में financially free. So
as per many, it might be late, but yeah, I mean, okay, I mean, I'm okay. I never aimed for it, but yeah, I mean, I can say Pretty that. fantastic. हाँ सर, तो फिर आपने सेटल ज्वाइन किया जो iFlex आज के दिन। iFlex के दिन हो गया और फिर बाद में Oracle ने टेक ओवर किया, which became OFSS, right? And I was there for 14 years with Oracle, and then I moved to Polaris Software. Okay. सर Oracle में आप MIS डिपार्टमेंट तो आई एम प्रिज्यूमिंग नहीं होगा? नहीं, उसमें कोर बैंकिंग था। इज बेसिकली iFlex इज कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर Finacle. या Finacle अलग है, इसका फ्लेक्स क्यूब है। फ्लेक्स क्यूब है। फ्लेक्स क्यूब है, राइट? सो वो इट वाज लाइक वन ऑफ द फर्स्ट company iFlex which was having this core banking, centralized core banking solution. And HDFC Bank was one of the first adopter to go for this centralized core banking solution in 97. So you are the, आप वो कंपनी में थे जो रिस्पॉन्सिबल है HDFC बैंक को HDFC बैंक ग्रो कराने के लिए। The core banking was something जिसके कारण I remember at that point of time branch banking होती थी। करेक्ट। और इस ब्रांच को पता नहीं था उस ब्रांच क्या हो रहा है। करेक्ट, क्या हो रहा है। तो बाद में वो जब भी कोर बैंकिंग आया तो यू कैन डू ब्रांचिंग फ्रॉम एनीवेयर, देन देयर ATM केम, देन नेट बैंकिंग केम, सो ऑल दिस वर डेवलप्ड एंड देन इट वाज डिलीवर्ड टू HDFC and then it was yeah, I mean, I was there for quite some time, and then I made a move to Polaris Software. Achha. So I got an opportunity because I felt that I was a bit saturated with iFlex, so then I moved to Polaris. कितने साल थे सर iFlex में? 14 years. 14 years. Yeah. तो क्या सर करियर जर्नी थी? So again, there also I joined as a junior programmer, and then slowly become whatever module lead, then team lead, then project manager, senior program manager, kind of a thing. So 14 साल एक कंपनी में थे। हाँ, so basically I kept learning. Okay, मतलब हर बार हर साल कुछ सीखने को मिलता था। I used to travel a lot. Okay, so travel in the sense international travel. So basically I used to enjoy that also, and that's where पोस्टिंग इंटरनेशनल पोस्टिंग होगी कोर बैंकिंग बोल के। करेक्ट, इम्प्लीमेंटेशन के लिए अलग अलग जगह पे, तो एक्सोटिक लोकेशन पे भी जाने को मिल रहा था, तो आई वाज एंजॉयिंग लर्निंग आल्सो, एंड देन इट वाज अ गुड फन. So after 14 years, I felt that I felt saturated, and that's where I thought of making a move. And then this was more of a retail banking. Then I moved to a Polaris Software, where I got an opportunity to work in the corporate banking. रिटेल बैंकिंग और कॉर्पोरेट बैंकिंग में तो हम समझ में आते हैं कि भाई रिटेल बैंकिंग हो गया हम सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट्स, FDs के लिए। कॉर्पोरेट बैंकिंग हो गया कॉर्पोरेट्स को जो लोन देते हैं उसके लिए। कॉर्पोरेट में जो LC खोलते हैं, ट्रेड फाइनेंस है, सप्लाई चेन है, लिक्विडिटी अलग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है, उसका अलग सॉफ्टवेयर होता है। तो उसके लिए पोलारिस सॉफ्टवेयर के पास, पोलारिस जो कंपनी है उसके पास उसके सॉफ्टवेयर थे, तो उसका प्रोडक्ट जो बैंकिंग प्रोडक्ट है वो डिवीजन में आई जॉइंड इट, एंड ओवर देयर 2000 no, so before that actually I was with Barclays. Sorry, I mean in 2011 I joined Barclays. अच्छा। Okay, from Oracle I joined Barclays in 2011, Barclays Bank in Mumbai. So again in bank there was a very small number of people who were over here in Mumbai. Then I was there for 2 years. Then I moved to Polaris. Okay, so Barclays mein it was more on the banking side. It is like managing the retail applications, not only retail banking but retail applications. There are several applications like credit card है, fraud management है, so काफी banks में काफी retail. So you move from back end to kind of like front end. Yeah, front end तो नहीं बोलेंगे, but again it was more IT side. हाँ, अच्छा IT side में ही आ गया। IT side ही। मतलब from software provider to you became to the banker बन गया। हाँ, from vendor to became a customer kind of thing. Yeah. So I moved there. And I was there for 2 years. Then Barclays was actually scaling down. I mean, you might be knowing that. Now they scaled down. They become a skeletal bank. So then I thought again there is not much to learn over here. Then I made a move to this Polaris Software. And Polaris again I was there for close to 8 years. 8 years. 8 years. Yeah. So they're also able to learn something new like liquidity management system, trade finance system. So I learned a lot of these systems and also travel again. So I was there for quite some time, 8 years, and then I made a move to CRISIL. So CRISIL is kind of a fourth job you can call, because first job was more of a trainee program. It was not a permanent job, right? And then this CRISIL is my fourth job in my 29 years of career. My goodness. Yeah. मतलब लोग तो सर काफी जंप करते हैं। हाँ, करेक्ट, राइट. सो आई थिंक लोगों का अलग अलग व्यूज़ होता है. मतलब काफ़ी लोगों को लगता है कि अरे थोड़ा सैलरी में इंक्रीमेंट मिल रहा है तो जंप कर लेते करके, बट आई डोंट बिलीव दैट. आई बिलीव दैट कि टिल द टाइम यू आर लर्निंग समथिंग यू शुड ट्राई टू कंटिन्यू विथ समथिंग, एंड अनलेस एंड अनटिल थिंग्स बिकम्स टॉक्सिक, ओके, और इफ द व्हाटएवर कॉर्पोरेट लाइफ बिकम्स टॉक्सिक, देन मे बी यू माइट नॉट वांट टू कंटिन्यू लाइक दैट. एंड बट आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि सब कंपनीज वाज वेरी गुड टू वर्क विथ, ओके, सो दैट्स वेयर आई एंजॉयड एंड दैट्स वेयर आई एम हियर. finance part later, but Yeah. work front,
मतलब you worked in banking Yes. and there are public sector banks, there are private sector banks, Right. and there are foreign banks. आपने कोई कल्चर में कोई फर्क देखा है कि उसके कोई सॉफ्टवेयर में कोई चेंज हुआ कि सबकी ऊपर ऊपर यही होती है अंदर में? नहीं, सो सॉफ्टवेयर तो सब जगह सेम ही होता है, ओके, बट जो बैंक साइड जो इम्प्लीमेंट करते हैं तो प्राइवेट बैंक्स आर वेरी एजाइल, ओके, दे आर वेरी फास्ट, दे टेक क्विक डिसीजंस, ओके, दे टेक ओनरशिप, दे टेक अकाउंटेबिलिटी, and once the project is whatever defined or was or executed or started, then they try to complete as soon as possible, ओके। जबकि PSU बैंक या पब्लिक बैंक्स होती है वहाँ पे पहले के टाइम पे थोड़ा स्लो चलता था, स्लो इन द सेंस कि पीपल आर नॉट टेकिंग द अकाउंटेबिलिटी और नॉट टेकिंग ओनरशिप एंड दैट्स वेयर द प्रोजेक्ट गेट्स डिलेड, बट नाउ डेज आई अंडरस्टैंड थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट कंपेयर टू अर्लियर डेज। सर अभी भी हम तो कई PSU बैंक्स का ऑनलाइन बैंकिंग यूज करते हैं, बहुत ही घटिया है। मतलब डिपेंड्स, अगेन वही है कि सॉफ्टवेयर तो सब जगह सेम ही होता है, बट वो जो चलाने वाले होते हैं बैंक में, हाउ गुड दे आर, इट डिपेंड्स ऑन दैम, ओके। सो अल्टीमेटली इट्स अ सेम सॉफ्टवेयर लाइक Finacle or FlexiCube is running at private banks also and public sector bank also, but depending on how क्या ऊपर में UI डालते हैं? UI क्या डालते हो, कैसे यूज़ करते हो उसको, यूज़ मतलब बोले तो how efficiently the bank is leveraging the banking software's features. It आज depends के on दिन that. सर UI तो बहुत मेन कोर कस्टमर एक्सपीरियंस पॉइंट हो गया है। Yeah, right. User interface, user experience is very much core to it, because in today's generation is because of the smartphone again, everybody wants it very easy to use interface and very intuitive interface, and that's where it has become very core to any kind of a design or any kind of a software. You're right. फैंटास्टिक। Yeah. सो आपके हिसाब से एज अ कंज्यूमर एंड बिकॉज आप थे डेवलपर वाइज, आर यू सीइंग कि बैंक्स आर स्पेंडिंग टाइम एफर्ट एनर्जी मनी ऑन इम्प्रूविंग द UI? Yeah, they are spending. Yes, they are definitely spending a lot of money on that and trying to make user experience much better compared to earlier days. Yes. सर अभी आप क्या करते हैं क्रिसल में? सो Okay. रिटेल बैंकिंग का सॉफ्टवेयर हो गया, हाँ। कॉर्पोरेट बैंकिंग का सॉफ्टवेयर हो गया, अब क्या कर रहे हो? Okay, right now I am leading the India practice for data and analytics platform within the CRISIL. Okay, so we have data analytics platform whereby we install some, we basically provide some data management and data engineering services to the various banks. Okay, it's very niche business of a CRISIL, and many don't know that CRISIL is also into software development and software provider platform. So that's where I'm leading that practice and obviously doing some implementation at various banks. हम तो सर क्रिसल को वो रेटिंग्स करके समझते हैं। रेटिंग्स जानते हैं एंड पोर्टफोलियो मैनेजर है तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जानते हैं। Okay. रतन झुंझुनवाला जी पैसा बनाए राकेश क्रिसल में, झुनझुनवाला। राकेश हाँ, ब्रेन फ्रीज, राकेश जी पैसा बनाए क्रिसल बराबर। में, सो I know. वो ध्यान है। बट सर तो ये बेसिकली बैंकिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? नहीं, बैंकिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, मतलब वी ऑल्सो हैव डिफरेंट काइंड ऑफ अ बैंकिंग सॉफ्टवेयर, रिस्क सॉल्यूशन इज देयर, विच इज लाइक ना वी प्रोवाइड दिस प्लेटफॉर्म टू द बैंक्स हु विल डू द रिस्क इवैल्यूएशन ऑफ द कॉर्पोरेट बोरोवर्स, ओके, सो दैट इज अगेन अनदर प्लेटफॉर्म। लेकिन आप जो भी कर रहे हैं सर ये I am leading into data analytics platform. So basically, when there is a lot of a data, it needs to be analyzed. Okay, it needs to be analytics needs to be prepared to take some to generate some insights, to generate some wisdom, and to maybe take some decisions. So right now, basically, I'm more into a data lakehouse project. Okay, whereby we implement data lakehouse in large banks, and that requires a huge amount of data to be consolidated into single place, and then it is used to generate some insights and wisdom. AI में सर कुछ यूज हो रहा है? AI में हो रहा है, हम कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं, हमारा खुद का बैंक्स क्या वो प्राइवेट LLM या कुछ बना रहे? जनरेट करके कर रहे हैं, करेक्ट, राइट। सो हम बेसिकली हमारा ऑलरेडी कुछ POCs चल रहे हैं। POC क्या हो गया? POC प्रूफ ऑफ अच्छा, proof of concept. मतलब डेमो बोलो या प्रूफ ऑफ कंसेप्ट बोल दो। सो बेसिकली वी डू अ प्रोटोटाइप एंड वी शो इट टू द बैंक, एंड इफ दे लाइक इट देन दे विल गो अहेड विद द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। सो दैट ऑल्सो वी आर डूइंग इट। सो मतलब आप बेसिकली बोल रहे हो, आई एम गिविंग एन एग्जांपल, लेट्स अज्यूम XYZ बैंक है, वो उसकी जो एनालिटिक्स है या जो मैनेजमेंट है
उनके लिए LLM में वो चैटबॉट चैट जीपीटी की तरह वो क्वेरी डालेंगे डालेंगे, बताएगा मतलब करेक्ट. सो कि- बेसिकली बताएगा, पूछेगा कि भाई मतलब व्हाट इज लाइक हु इज द हाईएस्ट पेइंग कस्टमर और हु इज हैविंग अ मोस्ट प्रॉफिटेबल कस्टमर, दोस कौन सबसे ज्यादा बैंक चार्जेस दे रहा है, कौन सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है, Yeah. कौन सी ब्रांच कर रही है, कहाँ Correct. प्रॉब्लम है, तो पूरा वो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर को डेटा के संग आप बना रहे हो. करेक्ट राइट. क्या बात है सर. Yeah. सर आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी के बारे में बताइए. ओके सो मेरी इन्वेस्टमेंट जर्नी तो स्टार्ट हुई काफ़ी अर्ली डेज 25 years बिफोर एक्चुअली आई से दैट and because my father used to do some kind of a investments. Acha. Yeah, so my father used to do a small investment and just used to make some profit now for whatever quick money. So basis that I used to follow him and he used to tell me कि अभी आपको ये IPO में apply करो, इसमें करो करके. तो I used to apply in IPOs and then he used to tell me okay now it has grown up whatever 10-20%, you exit now you sell the shares. Right. So in early days, you might be knowing that now for even applying for IPO, you have to fill up the form. हाँ Yeah, एकदम right? And एकदम once- फॉर्म yeah. फिलअप किया मैंने सर. हाँ, so वो आज में कुछ नहीं था उसमें. तो फिलअप करना पड़ता है. फिर अगर आपको सेल करना है तो भी आपको जाके बोलना पड़ता है राइट कि भाई ये सेल करो टाइप से, या कॉल करके बोलना पड़ता है. आज के दिन के जैसा इंटरनेट बैंकिंग नहीं था. सो उस टाइम पे वैसा था. तो फिर बाद में आई मीन एज आई टोल्ड यू आई यूज टू ट्रैवल राइट. So sometimes when he tells okay you sell, but I was not in the India or I was not able to go to branch because during the working days only the branch used to open. So then I used to I was not selling the shares okay at times. I mean quite some time. So IPO में लगा है और पड़े है टाइप से okay, और सेल नहीं कर पा रहा हूँ. काफ़ी बार मतलब डैड बोलते थे, पापा बोलते थे कि भाई कर दे करके, बट मेरे को टाइम नहीं मिलता था. सो बेसिकली ऐसे ही चलता रहा था. फिर मतलब काफ़ी टाइम से शेयर एक्यूमुलेट होने लगे और फिर बाद में पता चला कि यार इसका तो वैल्यू ग्रो हो रहा है. So, तो जस्ट डबल डाउन कर रहा हूँ, मतलब दो चीज बहुत अच्छा लगा. हाँ जनरली पेरेंट्स स्पेशली बोलते हैं भाई कोई यार मुझे याद है उस समय किसान विकास पत्र होता था, NSC certificate, नेशनल हाँ. सेविंग सर्टिफिकेट होते थे, FD. FD होते हैं, LIC होते हैं. पापा आपको बोलते थे कि आप IPO में डालो. हाँ करेक्ट राइट. सो दैट इज़ वेरी गुड एक्चुअली. यस दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. एंड सेकेंडली बिकॉज आपकी बिजी लाइफ के कारण वो क्विक मनी की जगह ज्यादा पैसा बना बिकॉज वेल्थ क्रिएशन हो गया. वेल्थ क्रिएशन करेक्ट राइट. सो बेसिकली वही पापा ने काफ़ी वो बताया सिखाया मतलब आई विल से इन अर्ली डेज. सो दैट हेल्प मी टू एक्चुअली स्टार्ट माई इन्वेस्टमेंट और वट एवर जर्नी एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. सो फिर बाद में पता चला कि अरे ये होल्ड करते अच्छी कंपनी है तो ना काफ़ी पैसा बनता है राइट. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. देन यूज टू ऑल्सो टेल कि ओके यू स्टार्ट परचेजिंग शेयर kind of a thing and that also I started doing. So obviously then slowly my interest got developed okay, and that's where I started doing my own I'll say little bit of research and started trying to understand कि अरे कैसे चलता है मार्केट, क्या है क्या नहीं है वगैरह. सो धीरे धीरे मेरे को और पता चला and then I used to start doing the investment maybe. So I'll say that around 15 years back I started doing more active investment. Whereby I used to buy a share particularly because I know that this share is going to grow or whatever ना. सब होमवर्क करते थे, रिसर्च करते थे. थोड़ा बहुत करता था, ज़्यादा तो नहीं, मेरे को इतना टाइम मिलता नहीं था और तो थोड़ा बहुत मैं करता था मतलब. सो बेसिकली आई यूज टू जस्ट रीड न्यूज़पेपर, आई जस्ट यूज टू हियर एंड देयर एंड जस्ट ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स एंड ट्राई टू फिगर इट आउट कि ओके अभी कौन सा शेयर चलेगा या क्या ग्रो होगा करके. So that's how I used to started investing and then I started making whatever accumulating the portfolio. सर आपको लालच नहीं आया जब ये जैसे कैलकाटा में तो बहुत सारे आई एम श्योर जैसे सहारा ऑल दोज डिपॉजिट स्कीम्स, पिग्मी डिपॉजिट्स, प्लांट का डिपॉजिट्स, दिस दैट डिपॉजिट्स, फिक्स्ड अश्योर्ड गारंटीड, बिकॉज टाइम कमती होता है तो करेक्ट. लोगों को लगता है कि इसमें हाँ. इन्वेस्ट कर दो पैसा मिल जाएगा जल्दी. हाँ हाँ वो मतलब आई से दैट कभी कभी होता था मे बी, शायद थोड़ा बहुत किया भी होगा मैंने मतलब FD में थोड़ा डाला होगा या ऐसा कुछ किया होगा. NSC वगैरह किया था इनिशियल ईयर्स में और इनफैक्ट पोस्ट ऑफिस जो होता है उसमें भी डाला था. बट बेसिकली ज़्यादा नहीं डाला था मतलब थोड़ा थोड़ा करता था. डैड बोलते थे कि थोड़ा डाल दे बट फिर स्लोली मतलब यही. हाँ सो मतलब इन्वेस्टमेंट करता था बट देन व्हेन आई एक्चुअली वांटेड टू बाय अ प्रॉपर्टी एट दैट टाइम आई थॉट कि ओके मेरे को कोई प्रॉपर्टी लेना है, मेरे को घर लेना है. तो फिर देन आई सोल्ड व्हाटएवर माय पोर्टफोलियो टू quite some extent and then encashed the money and then again took a loan also and that's how I started my journey. सो मैं ये पूछा था कि बीच में लालच नहीं आया कि जैसे
कई सारे स्कीम्स आती थी प्राइवेट नहीं, कंपनी की, नहीं। जो गेट रिच क्विक नहीं या हाई इंटरेस्ट रेट स्कीम्स? नहीं, वो कभी मैंने ऐसा नहीं किया है। मतलब एक आधा में किया था, आई लॉस द मनी ऑल्सो, बट ठीक है, मतलब दैट वाज लाइक लर्निंग ओनली, सो दैट्स ट्यूशन फीस में बोल के निकल गए? करेक्ट, लर्निंग मतलब एक्सपीरियंस Learning बेसिकली। experience, हाँ, सो वो तो मतलब कभी कभी होता ही है थोड़ा, तो मतलब अनलेस यू डोंट हैव द पेन यू डोंट गेन बेसिकली, राइट? सो नो पेन नो गेन काइंड ऑफ अ No थिंग। pain. सो पैसा गवाओगे तो ही आपको समझेगा कि भाई पैसा कैसे मतलब बनता है, बनाना चाहिए, सेफ रहना चाहिए। हाँ। सर, बिजनेस में पैसा ज्यादा बना कि जॉब में? लाइक क्या आपका व्यू है इसमें? सो देखिए, आई मीन ये बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आई विल से दैट। बिजनेस मतलब आप जब बोलते हैं तो वेदर इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच और वेदर ना हेरिडेटिंग द बिजनेस एंड देन ट्राइंग टू रन द बिजनेस, अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट, ओके। और दूसरा ये भी है आजकल की भाई आप नया कुछ करो, स्टार्टअप कर रहे हो, startup ओके, करो। स्टार्टअप कर रहे हो, और अगर आइडिया अच्छा है देन यू विल मेक ऑब्वियसली लॉट ऑफ मनी, राइट? सो आई मीन वी कीप हियरिंग सम स्टोरीज वेयर बाय ना पीपल आर मेकिंग मनी overnight, they are making millions of millions and making money. So obviously I'll say one side, yeah, that doing a startup or doing a business is good, you make a lot of money, but provided you have that vision and you have that kind of a hindsight कि भाई मतलब इस तरह से बिजनेस चलना चाहिए, राइट, या करना चाहिए, राइट? भगवान का आशीर्वाद भी होना चाहिए। हाँ, भगवान का आशीर्वाद भी होना चाहिए। हाँ, भगवान का आशीर्वाद भी है, लक भी होना चाहिए, आशीर्वाद भी होना चाहिए। सो वो सब भी है। सो मतलब सो पीपल हु आर रेडी टू टेक रिस्क दे कैन गो फॉर बिजनेस एंड प्रोवाइडेड दे हैव गुड आइडिया, but otherwise people like me who wants a stable job can go with a job only, and that's how you can also make a good money. सर, करीबन 29 इयर्स, ऑलमोस्ट 30 इयर्स, 96 Yeah, से, हाँ। तो 30 इयर्स के जर्नी में खाली 4 जॉब्स, मतलब लोग जॉब हॉपिंग करना नहीं चाहिए कि करना चाहिए? जस्ट आस्किंग। सी आजकल का जनरेशन का तो वही है कि मेरे को थोड़ा भी टॉक्सिक लगा तो मैं चेंज कर दूंगा या कर दूंगी, राइट, जॉब। दूसरा है कि आजकल के लोग वो सोचते हैं कि अरे मेरे को 20% हाइक मिल रहा है तो मैं जॉब चेंज कर दूंगा, राइट? सो दैट हेल्प्स यू इन अ मे बी अ शॉर्ट टर्म, ओके, कि आपको जॉब चेंज करोगे, बट आफ्टर अ टाइम यू रियलाइज दैट ना बाय द टाइम you get to understand something deeply, okay, you have left the job, okay, so you don't acquire the kind of a knowledge or depth of a knowledge in whatever short time you are staying somewhere. So normally कोई भी आप जॉब में जाओगे तो पहला 3 महीना तो आपको सेटल होने को लगेगा, राइट? आपको समझने को लगेगा कि कंपनी कैसे चलती है, कौन मतलब स्टेक होल्डर्स को समझ में आएगा कि कौन क्या करता है, किसका क्या पावर है। उसके बाद का 3 महीने में आप थोड़ा समझना चालू करोगे, काम डिलीवरी चालू करोगे, राइट? अब यू बिकम अ प्रोडक्टिव, राइट? सो 3 से 6 महीना तो ऐसे ही चला जाता है। उसके बाद आप एक्चुअली यू गेट इनटू द रिदम एंड यू स्टार्ट डिलीवरिंग समथिंग, राइट? करेक्ट। सो अभी 1 साल अभी आप समझने को आया, अभी इतना डेप्थ भी नहीं आया, और आप बोलोगे मैं जॉब चेंज कर दूंगा, तो आपको क्या है कि वो जो डोमेन में हो, जो एरिया में हो, उसका आपको डेप्थ पता ही नहीं चलेगा, एंड इट इज लाइक ना यू हैव विद शैलो नॉलेज यू कीप जंपिंग और हॉपिंग द जॉब्स, okay, so that in short term looks good, okay, but now after a while, I mean when you're going for an interview where you they see कि every year you are changing the job, then they don't consider you only, okay, they think कि अरे आप ये तो 4 साल में 4 जॉब चेंज किए, अभी 1 साल इधर रहोगे आप निकल जाओगे। और लोगों को पता भी है, मेरे जैसे जो सीनियर्स होते हैं, कि भाई 6 महीने का तो उसको सीखने को लगेगा अभी, और इसके बाद 6 महीना मतलब खाली काम करेगा और उसके बाद चल पड़ेगा, राइट? और उसमें भी वो नोटिस पीरियड होगा तो 3 महीने में वो भी नोटिस पीरियड देके तो मतलब हार्डली कुछ प्रोडक्टिव रहेगा। हाँ, सो बेसिकली पीपल डोंट देन ट्रस्ट दोज काइंड ऑफ पीपल। इनिशियली अच्छा लगता है बट देन इट डजंट मेक एनी क्या सेंस। ऐसे मिस होता है सर? ऐसे लाइक डेप्थ नहीं आती, नॉलेज की डेप्थ नहीं आती, ओके। सो आप जो एरिया में जो डोमेन में काम कर रहे हो, ओके, उसका आपको इन डेप्थ नॉलेज नहीं है तो आपको कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा। देन यू बिकम जस्ट लाइक रोबोट, ओके, कि आपको टेक्निकली कुछ पता चल रहा है बट ज़्यादा आप डोमेन का एक्सपर्टीज नहीं रहता है। सो दैट इज़ वाई आई फील कि ना जॉब हॉपिंग डजंट हेल्प इन अ लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म इट माइट बी हेल्पिंग यू। आप सर ओरेकल में iFlex में, if I remember correctly, 13-14 years 14 थे। years, right. 14 years, wow, pretty fantastic. सर, क्या सैलरी में चालू किए थे ओरेकल iFlex में, CTL एंड iFlex इन ओरेकल, सो क्या सैलरी में फिर निकले? Yeah, when I left Oracle it was like around 2 lakh क्या स्टार्टिंग per month, सैलरी था मतलब ओरेकल का? ओरेकल का मैं जब ज्वाइन किया तभी 1.2 लाख था मेरा ईयरली। हाँ, मतलब सॉरी 10,000 था, मैंने जब ज्वाइन किया तब 10,000 था मेरा। 10,000 से 2 लाख, which is almost like a हाँ, 20x kind of a. कितनी प्रमोशन मिली सर? प्रमोशन तो अभी ऐसे याद नहीं है बट हाँ वही 5-6 मतलब प्रमोशन मिली होगी, मतलब हाँ रफली।
Pretty fantastic. Like, क्या what did you deliver for Oracle that उन्होंने 20 नहीं वो तो आई थिंक मैं तो बोलूँगा मेरा कम था सैलरी, बट ठीक है. pretty fantastic. सर लाइक आजकल कंपनीज ESOPs देती है. हाँ जी. देयर इज अ मैसिव टैक्स एंगल टू इट एज वेल. राइट. कई लोग बोलते हैं कि भाई ESOPs में भाई कुछ मिलता तो है नहीं, टैक्स करता है, परक्विजिट वैल्यू करता पर किसी वैल्यू कट जाती है और एक्साइज करो तब उस समय होता है. क्या ओपिनियन है आपका ESOPs के बारे में, एंड हाउ हैव यू बीन गेटिंग ESOPs एंड यू नो हाउ डज इट वर्क? I feel कि ESOP is a good opportunity to make good amount of money or maybe अच्छा. to create a wealth, okay, and provided company is doing good, company is growing, I think you should stick to the company, and if they're offering you ESOP, nothing like it. अगर Okay. कंपनी ग्रो कर रही है तो ESOP लेना चाहिए. हाँ, मतलब कंपनी ग्रो कर रही है और ESOP आपको ऑफर कर रही है, देन इट इज़ बेटर टू टेक अ ESOP एंड स्टे बैक. सी अल्टीमेटली आप 10-20% आप मतलब कट लेके जो भी 10-20% इंक्रीमेंट लेके आप जॉब चेंज करते रहोगे, ओके. बट वो ESOP जो होता है वो आपको काफ़ी ऐसे कम प्राइस पे मिलता है, या लास्ट 6 मंथ का, अभी आजकल लास्ट 6 मंथ का एवरेज पे मिलता है. ESOP की जगह आजकल नया भी ऑप्शन होता है, RSU करके होता है, रेस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट, राइट. सो बट बेसिकली हाँ मतलब सो बेसिकली वॉट एवर ऑप्शन इज देयर यू कैन टेक वॉट एवर शेयर, एंड इफ यू थिंक कंपनी इज ग्रोइंग, बिकॉज सी यू आर इनसाइड द कंपनी, you know exactly well how company is doing it, right? Because as soon as you are in the company, you know that how much recruitment is going on, right? How much revenue is going, how much more customers are coming. So you are the one of the best person who knows that how company is growing, right? And if your company is growing and if you are being offered a stock option, then nothing like it. Then you should stay back and then try to see, because ultimately after 5 years, maybe after job hopping, you might be just you made your salary as like 50% or maybe a 60% more than whatever you were there at before 5 years, right? But अगर आप ESOP लिया होगा तो 5 साल में ESOP होगा डबल ट्रिपल 4 गुना हो गया होगा, ओके. सो देन कंपेरेटिवली अगर देखोगे आपके साथ कोई कलीग होगा जो चेंज जॉब हॉपिंग कर रहा होगा, उसका सैलरी जो होगा उससे ज़्यादा तो आप ESOP से मतलब कमाए होंगे. तो बेसिकली इट इज़ बेटर दैट नो यू स्टिक टू द कंपनी, प्रोवाइडेड यू आर एंजॉइंग इट, प्रोवाइडेड द वर्क कल्चर इज गुड, एंड प्रोवाइडेड आप कुछ सीख रहे हो. हाँ सीख रहे हो, मतलब स्टॉक ऑप्शन बहुत भी है. अच्छा बात बोले. हाँ. जो एम्प्लॉई है जो कंपनी में काम कर रहा है उसे तो पता ही है कंपनी ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है, कस्टमर्स आ रहे हैं, हायरिंग हो रहा है, राइट. कंपनी का कल्चर क्या है, एटीट्यूड क्या है, और ESOP मिले तो बिल्कुल ले लेना चाहिए. एग्जैक्टली करेक्ट. सो काफ़ी लोग वो भी समझते नहीं है, काफ़ी लोग ESOP लेते हैं बट देन एज सुन एज ESOPs आर वेस्टेड दे सेल द ESOP, ओके. अच्छा. उसको लग रहा है 10% मिल गया मेरा तो अभी मैं ESOP बेच के मतलब पैसा बना लेता हूँ करके. बट आई फील एज आई सेड कि भाई अगर कंपनी ग्रो ही हो रही है, अच्छा ही कर रही है, देन यू शुड होल्ड बैक, बिकॉज सी यू मेक अ वेल्थ ओनली इफ यू होल्ड बैक द स्टॉक्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, ओके. यू डोंट आप सीखे जब IPOs को जो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखे, करेक्ट लिए थे शॉर्ट गेन्स के लिए, और हाँ लॉन्ग बिकॉज ट्रैवल कर रहे थे तो नहीं बेच पाया, लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ क्रिएशन हुआ. करेक्ट राइट. सो काफ़ी स्टॉक्स में ऐसा हुआ है कि जो विच हैज़ बिकम 5x 10x जस्ट बिकॉज आई एम होल्डिंग इट. सो ऑब्वियसली यू विल नॉट मेक दैट मच मनी इफ यू इन्वेस्ट इनटू FD और NSC certificates or whatever, right? Or an endowment plan also. हाँ, endowment. Yeah, so I don't do any of these things nowadays. सर वर्क लाइफ बैलेंस क्या ये मिथ है, क्या लोगों को चेस करना चाहिए? आई थिंक ये वर्क लाइफ बैलेंस अभी ये जनरेशन का ऐसे कि वो है. अच्छा, ये जनरेशन का ऐसा कुछ जिंदगी में कुछ होता नहीं है बिकॉज सी यू आर वर्किंग फॉर योर सेल्फ, ओके. I mean, I understand, yes, you are working for a corporate job or corporate company, but ultimately आप जितना काम करोगे आप ही ज़्यादा सीखोगे, ओके. सो एक बात याद रखना है, आप जितना ज़्यादा काम करोगे या जितना ज़्यादा एफर्ट डालोगे आप ही ज़्यादा सीखोगे, ओके. एंड नो वन इज गोइंग टू टेक अवे योर नॉलेज. हाँ. Okay, so basically it all depends if you want to put it maybe 8 hours a day, if you want to put it 10 hours a day or 12 hours a day. जो भी सीखोगे आप वो कोई आपके पास से लेके नहीं जाएगा. हाँ, आपका काम है उसका, कॉर्पोरेट में भी विल मेक मोर मनी, राइट, बट स्टिल द नॉलेज विल लिव विथ यू ओनली. नो वन इज गोइंग टू टेक अवे दैट नॉलेज, राइट. सो आई फील कि वो वर्क लाइफ बैलेंस तो वो जिसको लगता है अरे मेरे को काम नहीं करना है ज़्यादा, वो नहीं करना, वो उसके लिए है. बाकी ऐसा कुछ होता ही नहीं है. आई मीन इट इज़ लाइक ऑल द 7 days I'm available, and if wherever required I mean on the call or whatever. क्या बात बोल रहे, seriously? Yeah, so I mean
ऐसा कुछ होता ही नहीं यार कि लीव है. अभी मैं गोवा में था तो अभी 4 दिन था मैं छुट्टी पे, बट देन आई वाज आल्सो ऑन द कॉल. ओके, सम ऑफ द कॉल्स आई वाज देयर, आई वाज फॉलोइंग अप विद द टीम. सो आई मीन सी, एज यू ग्रो यू हैव द अकाउंटेबिलिटी, यू हैव द ओनरशिप. ओके, यू कांट जस्ट से Agency. हाँ, मतलब यू कांट जस्ट से कि आई एम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर, मेरा काम हो गया, आज 4 दिन में नहीं हूँ तो मेरे को कुछ सोचना नहीं है. ऐसा नहीं होता है. Right, so I mean, like you are also right now over here, right? Your business is in Calcutta, you are here, but that does not mean that you don't think about your business, right? You obviously continuously think about it, right? So it is like that. I mean, whatever, wherever you are, I mean, you have to think about whatever your ownership is there, accountability is there. I mean, you may not be owning the business, but whatever your responsibility is there, that you have to own it and you have to deliver it. Sir, आपने देखा है, like I'm sure in your long journey of almost 30 years, you must have met people जिनकी ownership नहीं है in terms of their work, Right. or in terms of the responsibility, and you are a, how would I say, high agency person. तो करियर ग्राफ में कोई डिफरेंस देखने को मिला है? हाँ, सो काफ़ी बार वो देखा है कि काफ़ी लोग बेसिकली जो काफ़ी बोलते हैं ना, जैसे कामचोर. ओके, सो काफ़ी लोग ऐसा है कि मैं बस इतना ही करूँगा, उसके आगे नहीं करूँगा. तो आई हैव सीन कि दोज डू नॉट गेट प्रमोटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम. Okay, and those do not get increment also. Okay, good increment, and then they want to change the job, they switch the job, and again they go there, they feel कि okay मेरे को 20% मिल गया increment, but again the same cycle repeats over there also, because whatever manager or management knows that okay who is working well, who is not working well, right? And accordingly they will obviously give you the benefits. जो दिल दे रहा है और दिमाग दे रहा है उसे को प्रमोशन और हाइक मिलता है. हाइक मिलता है, correct. जो खाली एक ही Bonus. चीज देगा तो नहीं मिलेगा, दोनों चीज चाहिए. हाँ, वही. सी अगेन देयर इज अनदर एंगल टू इट ऑल्सो. काफ़ी लोग स्मार्ट होते हैं, स्मार्ट इन द सेंस कि इंटेलिजेंट होते हैं. ओके, स्मार्ट इंटेलिजेंट. सो 8 घंटे में वो 10 घंटे का काम भी कर लेते हैं, बट दैट अगेन शोज अप इन योर वॉट एवर डिलीवरेबल. ओके, पता है कि ये बंदा या बंदी जो भी है, भले 8 घंटा बैठते हैं या काम करते हैं ऑफिस में, बट दे विल डिलीवर मोर देन मे बी पीपल हु आर सिटिंग फॉर 10 आवर्स और 12 आवर्स. ओके, दिल और दिमाग दोनों चाहिए. हाँ, वो दोनों, मतलब तो बेसिकली यू स्लोली यू कम टू नो कि कौन कैसा है, एंड अकॉर्डिंगली यू टेक ए कॉल. सो आप लाइक लोग आजकल क्या कर रहे हैं, एंड दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग इज कि मोहित, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो नहीं होना चाहिए, लोगों के लिए प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो होना चाहिए, क्योंकि खाली प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो हो मेजॉरिटी, बिकॉज प्रॉपर्टीज हमेशा ग्रो करता है. Right. स्टॉक मार्केट्स ऊपर 19-20 होता है, ऊपर नीचे होता है. आई नो. क्या डाइवर्सिफिकेशन चाहिए या क्या खाली प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो होना चाहिए? सो उसमें ओके, गुड क्वेश्चन मोहित. सो सी देयर आर मल्टीपल आई विल से एंगल टू इट. ओके, सो आज जैसे काफ़ी कंपनी है, वहाँ पे आपको स्टॉक में ट्रेडिंग अलाउड नहीं है. ओके, तो आप स्टॉक नहीं कर सकते हो परचेज. ओके, देन मे बी यू कैन गो फॉर प्रॉपर्टी, राइट? On other side, if you're allowed to do whatever stock trading or stock options, stock buying, okay, trading, then you might do the investment in stock. Maybe after a while, okay, maybe at a regular interval, after you made a good amount of money, good in the sense कि आपको profit हुआ, 50% profit हुआ या 100% profit हुआ, जो भी हो रहा है, okay, then you convert that notional profit into a asset which is property, maybe. Okay, that is one of the category, asset, or maybe some other asset, maybe gold. Okay, but that is how you should do it, and you should diversify. So normally आपके सबसे diversified होना चाहिए, concentrated नहीं होना. Exactly, correct. So that I also been doing it, so I try to diversify. Pretty accordingly. fantastic. Yeah. सर, ये लोग बोलते हैं कि सैलरीड पीपल वेल्दी नहीं बन सकते. क्या लाइक ऐसा आपका क्या थॉट्स है? Again, there's a positive side, negative side, both way. मतलब as I told you कि see, if you work with a very short term objective, मेरे को increment चाहिए, then as I told you कि after a while you might be making a good money, but then you might not get a good job later on. Okay, because आप वो हर साल चेंज करते रहते हो 10% के लिए, हो सकता है आपको कुछ साल के बाद ना, if you are not able to deliver something, you will be thrown out of it. Okay, and that happens actually nowadays lot, right? I mean, you see a lot of people are getting laid off, right? Why? Because पता चलता है कि भाई जो इसमें से कितने ऐसे जॉब ऑफर्स है और कितने ऐसे है जो डीप डोमेन नॉलेज है, ओके, जो मिलेगा नहीं आपको मार्केट में. ओके, सो पहली बात ये है कि भाई आप कितना टाइम कंपनी में हो, कितना आपका नॉलेज है, वो हिसाब से आपको इधर इंक्रीमेंट मिलेगा या आपको जॉब मैंने सिक्योरिटी मिलेगा या आपको बेनिफिट मिलेगा, पर्क्स मिलेगा, जो भी, राइट?
So basically, see, again, you have to take a risk. Okay, so most of people, when they are even getting a good salary, okay, they try to be conservative. When I say conservative, they just put the money into FD, हाँ. okay, or whatever, such kind of a bonds, or no, which gives you 5, 6, 8% interest over the 5 years or 10 years, right? So if you are doing that kind of a thing, your money is not going to grow, it is going to decay. ओके, डीके मतलब डिफ्लेट होने वाला, राइट? एकदम इन्फ्लेशन हाँ, 7% है. इन्फ्लेशन 7%, तो उससे ज़्यादा अगर आपको मिल नहीं रहा तो आप गया, मतलब तो आपका तो कोई पैसा बन ही नहीं रहा, जो आपने एफडी में डाला है 5% में डाला है, 6% में डाला है, बट दैट इट इज़ ईटिंग योर मनी, राइट? सो लोग रिस्क नहीं लेते, उसकी वजह से वो नहीं होता है. If you take a risk, okay, like put into either equity, or maybe invest into a startup as angel investor, or maybe buy a property, right? Then there are chances that now you can become a rich or maybe wealthy, because those assets are going to grow. Okay, it is not going to grow at a 4%, 3%. So basically, if my understanding is correct, आपकी इनकम पैटर्न जो भी हो, हाँ, आपको जो भी पैसा आए एक्स्ट्रा जो बचे उसको आपको इन्फ्लेशन से आगे बढ़ने वाली चीज में डालना चाहिए. So I'll say one very good quote. Okay, if you're playing cards, right, you know, you don't need to have a good cards, but you need to know how to play in a good manner. Okay, right? So basically ऐसा है, मतलब पैसा ज़्यादा होना जरूरी नहीं है, but how you utilize that money, that is important. How you invest that money, that is important. And that is how, because I have never made a good salary. Okay, I mean, I'm not earning a very good salary, I'll say that, but I have invested money smartly, and that has actually helped me to Fantastic. grow. Sir, budgeting and personal, like, have you used कोई tools, कभी hacks, कोई managing करने के लिए पैसा? See, I'll say that in my early days, I used to track my expenses. Like in my early 5 years of a career, I used to track my expenses. उसी से discipline बन गया. हाँ, discipline बन गया कि I try to see, okay, that now I live within my means, right? And that is how, because my father also had taught me. I mean, he was also, we were from very middle class family, and just living comfortably, not very in good manner, that now you'll be eating out every week or kind of a thing, right? But so that taught me some values. So basically, I used to be very careful with my expenses. That now I used to restrict my whatever expenditure, and that's how I started. Then okay, whatever money I was saving it, I used to started investing. कैसे सर आजकल तो मतलब So आपको मैं जैसे इंस्टेंस देता हूँ, मैं जब बॉम्बे में आया था, okay, I used to stay in Kandivali, okay, which is like around 1.5 kilometer from the station, okay, and there used to be a bus also and a share auto also. So bus used to charge 2 rupees, okay, from station to this, and auto used to charge 5 rupees. Okay, and I remember in my early 3-4 years, me and my wife used to wait for a bus. Okay, we might have to wait for whatever now, maybe 10-15 minutes, but used to wait for a bus to go to my place, because I mean, used to save 3 rupees, right? And that was good for me at that point of time. So that's how I actually frugally started my career, or whatever, I started my financial journey. अब ये जो बात बोले ना, मुझे मेरी याद आ गई. कलकत्ता में डलहौजी से टैक्सी मिलती थी हमारे ऑफिस वापस जाने के लिए सेंट्रल एवेन्यू में. तो टैक्सी यूज्ड टू कॉस्ट 30-40 रुपीज़, और अगर आप वॉक करके जाओगे करीबन 1-1.5 किलोमीटर तो वो मेट्रो स्टेशन मिल जाती थी, जहाँ से 3 से 4 रुपये लगती थी मेट्रो का, जो मेरे ऑफिस है. सो I've been there. It gives me back those memories. Yeah, so that's how we started, and we have been, I mean, thanks to my wife actually, and she has been very frugally manage the home basically. So I'm really grateful to her, and she has been really my I will say partner, I mean, in everything actually. They are a better house. Yeah, and still today also, I mean, if she feels that this is not value for money, then she will not spend, or neither allow me to spend actually. क्या इम्पोर्टेंट है लिविंग विद इन योर मीन्स या सेविंग मनी, बिकॉज आजकल तो इंस्टेंट खुशी मिलती है, 2-2 मिनट में मिलती है. Yeah, so as I told you, see, you have to decide your goals, okay, and if you want to start your build your financial freedom or financial journey, then you have to keep aside a certain amount of money for purely from the investment perspective. So normally what people do is that, okay, salary आया, उसमें जो भी स्टार्टिंग में आया पूरा स्पेंड कर दिया, फिर कुछ बचा तो इन्वेस्टमेंट करेंगे. सो इट शुड बी अदर वे. यू शुड बेसिकली
do the investment first. As soon as salary comes, you do the investment first. You park your money, whatever, na, either whatever you want to buy a stock or whether it is a mutual fund, SIP, wherever is there, you put that money, whatever 2000, 5000, जो भी आपका है, मतलब surplus आपको लग रहा है कि मिलेगा, you put that at the start of your salary जब भी credit होता है, you put that money into a separate account or you just invest it right there. Then whatever is remaining out of that, you start leaving it. Okay, that is how you should do it. I mean, that's what I've been doing it, or rather. So brilliant ऐसा, मतलब वेरी डिफिकल्ट है आज के दिन. लोग बोलते हैं कि मोहित पहले पैसा आए खर्चा करते हैं फिर बाद में सेविंग करते हैं, एंड यू नो यू आर अ रियल हिस्ट्री, रियल लाइफ एग्जांपल. आपने पहले सेव किया फिर बाद में खर्चा किया. Right, that's how I mean. Pretty fantastic, sir. सर आपके करियर ग्रोथ में यू नो बहुत सारे, आई बिलीव उस समय एआई था नहीं, उस समय MIS से यू मूव्ड इनटू रिटेल बैंकिंग सॉफ्टवेयर से कोर बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, फिर कोर बैंकिंग. मतलब हाउ डिड यू, क्या कुछ सीखते हो, लाइक हाउ डू यू लर्न? लाइक नॉर्मली पीपल यार कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, ग्रोथ नहीं करना है, नया सीखना नहीं है, स्ट्रगल होता है, फेल हो जाएंगे, समझ में नहीं आएगा. Like what's your style, sir? No, so my style is that I am very risk taker. Okay, as I told you, okay, I take a lot of risk. Okay, so I mean, I feel very I'll say uncomfortable if I am like complacent. Okay, मतलब कि मेरे को लग रहा है हर रोज सेम चीज़ ही करना है, तो I feel boring and I feel कि अरे यार कुछ और करने का नहीं है, तो I feel very unfulfilled kind of thing. So I continuously try to seek challenges in some or other manner, and that's where either I'll feel that within the company only I try to seek something more or shoulder more responsibility, or I try to learn something new. Okay, so from that perspective, I mean, like every year I try to acquire some new skill or something new. Okay, so like every year I try to do that. So हर साल में कुछ टेक्निकल है या जो भी अलग अलग डोमेन है उसके लिए प्रिपरेशन कुछ करता हूँ, कुछ एग्ज़ाम देता हूँ ना. यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ बटरफ्लाई इन योर स्टमक जब भी एग्ज़ाम दे रहे हो या कुछ ऐसे पढ़ रहे हो, तो दैट इज व्हाई आई कीप डूइंग इट एंड दैट कीप्स मी मूविंग एक्चुअली. सर लास्ट ईयर क्या स्किल सीखे और इस साल क्या सीख रहे हो? सो लास्ट ईयर मैंने एक सस्टेनेबल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करके एक होता है कंसेप्ट. ओके, सो आई एम गुड एट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. सो मैं सस्टेनेबल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक एग्जाम होता है ग्रीन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करके. सो लास्ट ईयर आई लर्न दैट कंसेप्ट एंड आई क्लियर दैट एग्जाम. सो एंड वेरी फ्यू इन द वर्ल्ड हैव डन दैट. फैंटास्टिक सर. एंड इस साल सर क्या प्लान है? इस साल कुछ डेटा साइड मतलब करने का प्लान है, टू लर्न समथिंग. ऑब्वियसली एआई तो कर ही रहा हूँ, एआई तो इट्स लाइक नाउ पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ एक्चुअली. सो आई एम डेवलपिंग सम एप्लीकेशंस विच विल बी लाइक go to production this year, but apart from that I'm planning to learn something more on the data side. Okay, learn more on the data management side and data governance side. So that is my objective for this year. Sir, एक fear है मार्केट में कि AI हमारी जॉब्स ले जाएगा और ले-ऑफ्स होंगे इसके कारण, एंड यू नो जॉब ग्रोथ्स नहीं होंगे इंडियन आईटी इंडस्ट्री में. क्या ओपिनियन आपका? I think that is kind of a fear बोलो या to some extent myth बोलो. Okay. अच्छा. हाँ. So as of now there are so many jobs which are there, but only thing is that you have to learn something new. Okay, and which people are scared of learning something new. Okay, and that is where the people are getting laid off. Right. So in AI side there are so many jobs available in the market. Okay, then there is on the data side, data governance side, data engineering side also there are so many jobs which are available in the market. Okay, so there are a lot of things are there, but people don't want to learn, or people are scared of learning it and maybe doing something new. So I feel ki it is more of a fear only, and unless and until you don't change, you are not going to grow, or you're not going to continue a job, right? So you know, I mean, like जब भी टाइपराइटर से कंप्यूटर आया तो तभी भी लोगों को लग रहा था अरे यार कंप्यूटर सब जॉब ले लेगा, राइट? मतलब बट वो टाइपराइटर का जॉब चला गया, बट अभी कंप्यूटर का जॉब इतना आया, डेटा एंट्री ऑपरेटर उस टाइम पे मतलब 90s में आया, राइट? तो ऐसा काफ़ी हुआ. सेम वे 2000 में .com आया तो तभी भी वही था कि अरे यार ये सब जॉब ले रहा है. अभी वो क्विक कॉमर्स आया तो लोगों को लग रहा है अरे मेरा मोम एंड पॉप स्टोर को लग रहा है अरे हमारा बिजनेस चला है. सो देयर विल बी ऑलवेज अ काइंड ऑफ अ रिवोल्यूशन विच विल कीप हैपनिंग, बट यू हैव टू कीप लर्निंग इट. एंड नाउ देयर आर सो मेनी न्यू अपॉर्चुनिटीज विच आर देयर इन टूडेज वर्ल्ड दैट दोज वर नॉट देयर मे बी 10-20 years back actually. So I feel ki it is just a fear factor only, but you have to just keep learning something new. I'll give you a very typical example. Okay, I mean yesterday only I was talking to my cousin, and last year when I had met him, okay, he's in Rajkot, and last year I met him and he told me he's running a small business and on the tech side, IT side.
So he was telling me, okay, you tell me what is new. So I told him that, okay, these are the new technologies which are coming up, okay, and you can just देख see, सकते yeah, you get your team learn it and you will get the opportunity. And then he was thinking, but then recently, yesterday what he told me is that there was some intern who had come to him, okay, to learn something. I mean, take an internship, okay, one of the engineering grade. And he said that he told this new intern, okay, ki you learn this new technology, and if I get the opportunity, I'll place you, okay, or I'll take you into my company, and if not, at least it will help you. And you won't believe that this guy learned this new technology, okay, intern learned this new technology, and within 1 month he got a job in the American company, okay, working from remotely, I mean as an intern only, for 70,000 rupees per month क्या बात है एज ए इंटर्न, वो भी राजकोट में, ओके, जो जहाँ पे मतलब यू कोई कैन इमेजिन, राइट, हाँ, मतलब बॉम्बे में है, बेंगलोर में, समझ रहे राजकोट हो, में वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप में 70,000 for US company and 70,000 rupees per month. Okay. क्या चीज़ So just because that I told him this and he said he just passed on this message to this new guy, okay, intern who was just a college में जब भी पढ़ रहा था, and he just got it. So basically it is like this only, that now whatever new technology is there, you just put in a little bit of effort, you try to learn something new and try to demonstrate. See, nowadays social media is so convenient, so effective, that if you demonstrate your expertise onto social media, you'll immediately get attention and you will immediately get whatever now opportunities. So those people are not using it effectively, and because of that people are having this fear factor. But I mean, just learning some new technology is going to telling you that is going to take you the new heights and new, I mean, achievements. So Brilliant. yeah, and I was also actually happy to learn that now I told someone and who actually told someone and who got job also. लोगों का भला हो जाए और क्या हाँ, चाहिए और क्या चाहिए, that's what I मतलब actually, मुझे आपसे सीखने को मिला है ना हाई एजेंसी ओनरशिप होना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दिल दिमाग लगाओ कुछ नया कुछ ना कुछ सीखते रहो दैट्स प्रीटी फैंटास्टिक सर सर अगर कोई मैसेज किसी को देना चाहेंगे जो प्रोफेशनल सक्सेस खोज रहा है लाइफ में क्या उसे करना चाहिए वन मैसेज okay, one message में तो मुश्किल है, but I'll say that yes, you keep learning, हाँ. okay, keep upskilling, okay, learn to learn, हाँ. basically. learn to learn Okay, so you learn how to learn new things. अच्छा सीखने की कला सीखो Exactly, okay, कि how quickly you will learn those things that you have to learn. ओके क्या आपका सर क्या स्टाइल है डबल हाँ, डाउन so basically see, काफी लोग ऐसा बोलते हैं कि okay, मेरे को कोई सिखाएगा तो मैं सीखूंगा, हाँ 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 ओके, मेरे को जाना पड़ेगा, क्लासेस में जाना पड़ेगा, उधर जाना पड़ेगा, वो नहीं, यू हैव टू लर्न बाय योरसेल्फ. ओके, सो बेसिकली देयर आर सो मेनी nowadays free resources available on the net, YouTube, everywhere, right? So you just pick up some of these things and you start learning it, and that will give you an edge compared to others. So that is why I'm saying learn to learn. That is only I can tell you. That is upskilling. You have to continuously keep doing it. Don't try to spend, okay, I'll spend money for so many, matlab, taking so many courses and so many things, and then I'll be. You have to learn, and you have to do it by yourself, everything. Okay, that's what I'll say that. Pretty fantastic, Biren ji. Thank you so much for this wonderful conversation. हम सब सीखना चाहते हैं. Very importantly, सीखने की कला होनी चाहिए और हमें जिज्ञासा, हमारी ओनरशिप होनी चाहिए. प्लीज़ याद रखें, हमें ज़िंदगी में थ्राइव करना है, सर्वाइव नहीं करना है. Thank you, Biren ji, for a wonderful conversation. Great. Thank you. Thank you for inviting me, and it was really pleasure to talking to you. Absolutely, sir. Sure. Thank you.